पर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। मैथ्यू अर्नोल्ड जो इंग्लिश के बहुत जाने माने पोएट है, आज हम उनको देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड वॉज बोर्न ऑन 24 December 1822. He died on 15th April 1888. He was an English poet and cultural critic who worked as an inspector of schools, and he was the son of the Thomas Arnold and the celebrated headmaster of Rugby School, and brother to both Tom Arnold, literary professor, and William Delafield Arnold, novelist and colonial administrator. They all are brothers. ठीक है, तो मैथ्यू अर्नोल्ड हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड एज अ सेज राइटर, अ टाइप ऑफ द राइटर हु chastises and instructs the reader on contemporary social issue, and he was also an inspector of schools of 35 years and supported the concept of state regulated secondary education. He wrote verse for a family magazine and won school prizes. His prize poem Alaric at Rome was printed at Rugby. In 1849, he published his first book of poetry, The Strayed Reveller. In 1850, Wordsworth died. Arnold published his memorial verses. ये याद रखने वाली चीज़ है, वर्ड्सवर्थ के नाम पे उन्होंने लिखा है. वर्ड्सवर्थ died and Arnold published his memorial verses on the older poet in Frasers magazine. कौन से मैगजीन में? Frasers magazine में. Arnold is sometimes called the third great Victorian poet. It is also very very important information. Third great Victorian poet along with Alfred, लॉर्ड टेनिसन एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग. ठीक है, तो अल्फ्रेड और लॉर्ड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग. इंपॉर्टेंट वर्क, इनके जो इंपॉर्टेंट पोएम्स है उनके नाम यहाँ पे दिया हुआ है. स्टेंजाज इन मेमोरी ऑफ द ऑथर ऑफ द ओबरमैन. ठीक है, द स्ट्रेट रिवेलर एंड अदर पोएम्स. एम्पेडोकल्स ऑन एटना एंड अदर पोएम्स. सौरभ एंड रुस्तम, द स्कॉलर जिप्सी. स्टेंजाज फ्रॉम द ग्रैंड चार्टर यूज एंड मेमोरियल वर्सेस टू वर्ड्सवर्थ, रगबाई चैपल और थैरिसिस. ठीक है, तो इसमें उनका इंपॉर्टेंट वर्क है डोवर बीच. ठीक है, ये लिरिक पोएम है. इट वॉज पब्लिश इन 1867 इन द कलेक्शन न्यू पोएम. द टाइटल लोकल सब्जेक्ट ऑफ द पोएम डिस्क्रिप्टिव ओपनिंग लाइन्स इज द shore of the English ferry port of Dover in Kent, facing Calais in France at the Strait of Dover, the narrowest part, 21 miles. It is a place, 21 miles or a 34 kilometer of English Channel, where Arnold honeymooned in 1851, and many of the beaches in this part of the English are made up of small stones or pebbles rather than sand, and Arnold described the seas ebbing over the stones as a grating roar. ठीक है, grating roar याद रखिएगा. ठीक है, तो ये हनीमून वहाँ पर उन्होंने मनाया था और उस पर ये उन्होंने फिर पोएम लिखी. द स्कॉलर जिप्सी इम्पॉर्टेंट पोएम है, और ये जो है 17th century ऑक्सफोर्ड स्टोरी फाउंड इन जोसेफ Glenville's The Vanity of Dogmatizing 1661. It has often been called one of the best and most popular of Arnold poems, and is also familiar to music lovers through Ralph Vaughan Williams' choral work and Oxford Elegy, to which sets lines from this poem from its companion piece Thyrsis. ठीक है, तो थैरिसिस भी देख लेते हैं. ये है फ्रॉम द टाइटल ऑफ द Theocritus poem is a poem written by Methew Arnold in December 1865 to commemorate his friend, the poem author Hugh Clow, who had died in November 1861, aged only 42. The character Thyrsis was a shepherd in Virgil's 7th eclogue who lost a singing match against COLRIDGE. The implications that Clow was a loser is hardly fair, given that he is thought by many of to have been one of the greatest 19th century poet. ठीक है, थैरिसिस. फिर और इनके सिलेक्टेड प्रोज है, ऐसे उन्होंने लिखी. ऐसे इन क्रिटिसिज्म इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऐसे. ठीक है, तो ये एक याद रखिएगा, ऐसे इन क्रिटिसिज्म जो है अलेक्जेंडर पोप ने भी लिखी है, बट आप डेट याद रखिए 1865 1888. कल्चर एंड एनर्जी, फ्रेंडशिप्स, गार्लैंड, लिटरेचर एंड डोगमा, एंड गॉड एंड द बाइबल. कल्चरल एंड एनर्जी जो है पॉपुलर है.
ये है ऐसे इन पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिसिज्म इज अ सीरीज ऑफ पीरियोडिकल एसेज बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, फर्स्ट पब्लिश इन Cornhill magazine 1867 and 68 and collected as a book in 1869. The preface was added in 1869. Arnold's famous piece of writing on culture established as his high Victorian cultural agenda, which remained dominant in debate from the 1860s until the 1950s. The book contains most of the term culture, sweetness and light, barbarian, है ना, Philistine, हेबरिज्म एंड मैनी अदर्स विच आर मोस्ट एसोसिएटेड विद अर्नोल्ड्स वर्क इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो याद रखिएगा कल्चर एंड एनर्जी। फिर है सौरभ एंड रुस्तम। सौरभ एंड रुस्तम जो है एन एपिसोड इज अ नैरेटिव पोएम विद स्ट्रॉन्ग ट्रेजिक थीम्स, फर्स्ट पब्लिश इन 1853 बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। द पोएम रिटेल्स अ फेमस एपिसोड फ्रॉम द फिरदौसीज पर्सियन एपिक, ठीक है, सहना में रिलेटिंग हाउ द ग्रेट वॉरियर रुस्तम अनोइंगली स्लीव हिज लॉन्ग लॉस्ट सन सोहरब इन सिंगल कॉम्बैट। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 892 लाइन्स ऑफ ब्लैंक वर्स। ठीक है, सोहरब एंड रुस्तम। फिर है द मार्गुराइट कंटिन्यूड करके है, ये भी पोएम है अर्नोल्ड के द्वारा, एंड इट वॉज द फर्स्ट पब्लिश इन एम्पेडोकल्स इन एटना। एम्पेडोकल्स एंड एटना, ये जो है ऑन एटना इट इज़ अ वर्क विच पब्लिश इन 1852 विद द टाइटल टू मार्गुराइट टू रिटर्निंग अ वॉल्यूम ऑफ द लेटर्स ऑफ ऑर्टिस इन द 1857 एडिशन। द पोएम इज प्रिंटेड एज अ सीक्वल टू द पोएम आइसोलेशन टू मार्गुराइट, देयर इट फर्स्ट एडॉप्टेड द सिंप्लीफाइड टाइटल। ठीक है, फिर है बाल्डर डेड। Balder Dead is a narrative poem with powerful tragic themes and first published in 1855 by Methew Arnold. This poem draws upon a Norse mythology, retelling the story of the murder of Odin's son Balder as brought about by the wicked machinations of Loki, blood brother to Odin. Arnold was elected professor of poetry at Oxford in 1857 and he was the first in this position to deliver his lecture, ठीक है, in English and rather than in Latin. He was re-elected in 1862. On translating Homer, the initial thoughts that Arnold would transform into culture and anarchy were among the fruits of the Oxford lectures. ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड जो लेक्चर उन्होंने जब वहाँ पे दिया है और उसी पे बेस्ड ये उन्होंने ये बुक लिख दी है, मान के चलो। ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, ये भी उनका वर्क है, अभी बात किए थे। पब्लिश इन जनवरी 1861 वॉज अ प्रिंटेड वर्जन ऑफ द सीरीज ऑफ पब्लिक लेक्चर्स गिवन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड फ्रॉम 3 नवंबर 1860 टू 18 दिसंबर 1860। याद रखिएगा। फिर है जॉर्ज वेटसन फॉलोज जॉर्ज सेंट्सबरी इन डिवाइडिंग अर्नोल्ड्स कैरियर एज अ प्रोज राइटर इनटू 3 फेजेस। अब देखो किसने भी डिवाइड किया है, जॉर्ज वेटसन ने जो है बांटा है अर्नोल्ड के कैरियर को 3 फेसेस में। पहला जो है अर्ली लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट बिगन्स विद द प्रीफेस टू द 1853 एडिशन ऑफ हिज पोएम एंड एंड्स विद द फर्स्ट सीरीज ऑफ एसेज इन क्रिटिसिज्म 1865। सेकेंड जो है अ प्रोलॉन्ग्ड मिडल पीरियड ओवरलैपिंग द फर्स्ट एंड थर्ड फेसेस कैरेक्टराइज बाय द सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस राइटिंग रफली 1860 टू 1875। थर्ड है अ रिटर्न टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म विद द सिलेक्टिंग एंड एडिटिंग ऑफ कलेक्शंस ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड बायरॉन्स पोइट्री एंड द सेकेंड सीरीज ऑफ एसेज इन क्रिटिसिज्म। तो ये दोबारा जब एसेज इन क्रिटिसिज्म वो दोबारा पब्लिश हुई, तो इस तरीके से आप देख लीजिए तीनों, ये हम लोगों को पढ़ लेना है एक बार और देख लेना है कि भाई ऐसा कुछ भी था और नाम वगैरह याद रखना है। ठीक है, तो ये मेन जो है हम जो इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू मैथ्यू अर्नोल्ड मैंने ये कलेक्ट करके आपको दिखा दी। ठीक है, तो पढ़ लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक ज़रूर करिएगा अगर पसंद आता है वीडियो, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।